આજે આપણે તારીખ 16 મે 2026ના કેટલાક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કરંટ અફેર અને અગાઉની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા કેટલાક ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નો વિશે ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું, જે આપને આવનારી પરીક્ષા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે. તો મિત્રો, આપ આ ચર્ચા સાથે જોડાઈ રહેજો અને વિડીયોને પહેલેથી લઈને છેલ્લે સુધી પૂરેપૂરો જોવાનો આગ્રહ રાખજો. તો ચલો મિત્રો, શરૂ કરીએ. શરૂઆત કરતાં પહેલાં જણાવી દઉં કે જો તમારે આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બાકી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, નોટિફિકેશન બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરીને. અને જો તમને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, પરંતુ વિડીયોને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. તમારા જેટલા પણ મિત્રો જેઓ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તૈયારી કરી રહ્યા છે એ બધા મિત્રો જોડે આ વિડીયોની લિંકને અત્યારે શેર કરી દો, તમે જે તે સોશિયલ મીડિયા એપ્લિકેશન વાપરો છો એમાં. ચલો તો શરૂઆત કરીએ. સૌપ્રથમ જોઈશું અગાઉની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા વિજ્ઞાનના પ્રશ્નો, જેના જવાબો તમારે કમેન્ટમાં લખીને જણાવવાના છે. વિડીયોના લાસ્ટમાં જ્યારે હું તમને આ દરેક પ્રશ્નના જવાબ જણાવું ત્યારે તમારે ચેક કરવાનું કે તમે આપેલા પ્રશ્નના જવાબમાંથી કેટલા પ્રશ્નોના જવાબ સાચા છે, અને જેટલા પણ પ્રશ્નો જવાબ સાચા હોય એનો આંકડો તમારે કમેન્ટમાં લખવાનો છે કે 10માંથી આટલા સાચા છે. ડેઇલી જીકે ટેસ્ટમાં આપણે રોજ 10 પ્રશ્નો પૂછે છે, એમાંથી 5 પ્રશ્નો વિજ્ઞાનના હોય છે. બાકીના જે 5 પ્રશ્નો છે એ ગુજરાતની કળા, સંસ્કૃતિ અને વારસાના છે. તો તમે તમારા આન્સર આપો નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં, અને હું આજના કરંટ અફેરનો પ્રથમ પ્રશ્ન છે એની શરૂઆત કરું છું. પ્રથમ પ્રશ્ન છે, રેબીઝ ફ્રી અમદાવાદ અભિયાન પૂર્ણ કરવાનું લક્ષ્ય કયા વર્ષ સુધીનું છે? તો જવાબ આવશે વર્ષ 2030 સુધીનું. તમને ખબર હશે 2030 સુધીના આપણા ઘણા બધા લક્ષ્યો છે, જેમ કે ભારતનું લક્ષ્ય છે કે 500 ગીગાવોટ રિન્યુએબલ એનર્જી, ગુજરાતનું 105 ગીગાવોટ રિન્યુએબલ એનર્જી અને મહારાષ્ટ્રનું 84 ગીગાવોટ ગ્રીન એનર્જીનું લક્ષ્ય છે 2030નું. આ ઉપરાંત તમને ખબર હશે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ છે એ યોજાવાની છે આપણા અમદાવાદમાં 2030માં. મંગળયાન 2 એ પણ લોન્ચ કરવાનું છે 2030માં. અને ભારતમાંથી બાળ લગ્ન નાબૂદીનું લક્ષ્યાંક 2030નું છે, મેલેરિયા નાબૂદીનું લક્ષ્યાંક 2030નું છે. આ ઉપરાંત યુનાઇટેડ નેશન્સ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ છે, તો એનો પણ લક્ષ્યાંક છે 2030નું. ભારત નહીં પરંતુ ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતનું અર્થતંત્ર $1 ટ્રિલિયન સુધી પહોંચાડવાનું લક્ષ્યાંક પણ 2030નું છે. આના સિવાય તમને જે બાકી હોય 2030ના લક્ષ્યાંકમાં, હા, ઇન્ડિયન રેલવે નેટ ઝીરો એ પણ લક્ષ્યાંક 2030નું છે. મહશીર અને ટ્રાઉટ નામની માછલી છે એનું ઉત્પાદન બમણું કરવાનું છે લક્ષ્યાંક 2030 સુધીમાં. પછી અટલ પેન્શન યોજના છે એ એક્સટેન્ડ કરવામાં આવી છે 2030-31 સુધી. અહીંયા આપણે રેબીઝ ફ્રી અમદાવાદ અભિયાનની વાત ચાલી રહી છે. તો અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા શહેરને 2030 સુધી રેબીઝ ફ્રી બનાવવા માટે એક વિશેષ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે, જે અંતર્ગત અત્યાધુનિક ટેકનોલોજી જેમ કે જીપીએસ, જીઓ ટેગિંગ અને ફોટોગ્રાફી એના મદદથી રખડતા કૂતરાઓની વૈજ્ઞાનિક ગણતરી શરૂ કરવામાં આવી છે. અને આશરે 28 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે આગામી 10 મહિનામાં સમગ્ર શહેરમાં ગણતરી પૂરી કરવામાં આવશે. ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ ડુપ્લિકેશન અટકાવવા માટે માઇક્રોચિપ અને જીઓ ટેગિંગ એનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. અત્યાર સુધીમાં 5071 શ્વાનોમાં માઇક્રોચિપ લગાવવામાં આવી છે, જેનાથી રીવેક્સિનેશન સરળ બનશે. વર્તમાન સ્થિતિ જોઈએ, વર્ષ 2019માં અંદાજે 2,10,000 કૂતરાઓ હતા. બહેરામપુરા વોર્ડમાં થયેલી પ્રાથમિક ગણતરીઓમાં 1100 કૂતરા નોંધાયા છે. અને ખસીકરણની કામગીરી 2018થી અત્યાર સુધીમાં ટોટલ 1,86,884 શ્વાનોનું ખસીકરણ અને રસીકરણ કરવામાં આવ્યું છે, જેની પાછળ અંદાજે 18.78 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થયો છે. સતત કામગીરીને કારણે શહેરમાં ગલુડિયાની સંખ્યામાં ઘટાડો થયો છે અને વૃદ્ધ શ્વાનોની સંખ્યામાં વધુ જોવા મળી રહી છે, એટલે જન્મદર પર કાબુ મેળવવાનો સંકેત આપે છે. તમને ખબર છે રેબીઝ હડકવા વર્લ્ડ રેબીઝ ડે આપણે મનાવીએ છીએ 28મી સપ્ટેમ્બર. આપણા ભારતમાં એક એવું રાજ્ય છે, પ્રથમ રાજ્ય છે જે હડકવા મુક્ત રાજ્ય કહેવાય છે. નામ તમારે જણાવવાનું કમેન્ટ બોક્સમાં લખીને. દર વર્ષે આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રકાશ દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો 16મી મે, આજનો દિવસ, ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ લાઇટ. તો દર વર્ષે 16મી મેના રોજ આ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. 1960માં ભૌતિક શાસ્ત્રી અને ઇજનેર થિયોડોર મેમન એમના દ્વારા લેસરના પ્રથમ સફળ ઓપરેશનની આ વર્ષગાંઠ છે, એટલે દર વર્ષે 16મી મેના રોજ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રકાશ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. પ્રકાશની વિજ્ઞાન, સંસ્કૃતિ, કળા, શિક્ષણ, ડેવલપમેન્ટ, મેડિસિન, કમ્યુનિકેશન અને ઉર્જા ક્ષેત્રમાં જે મહત્વનું પ્રદાન છે એના માટે દર વર્ષે આની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ વર્ષની 2026ની આની થીમ પ્રકાશ, વિજ્ઞાન અને સમાજ, નવીનતા અને અસરને આગળ વધારવી આની થીમ છે. બરાબર છે. પ્રકાશની અવકાશમાં ગતિ કેટલી છે, એટલે પ્રકાશની સ્પીડ કેટલી છે, તમને ખબર હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવો. મિત્રો, આજે રાષ્ટ્રીય ડેન્ગ્યુ દિવસ પણ છે. તો ભારતમાં દર વર્ષે 16મી મેના રોજ રાષ્ટ્રીય ડેન્ગ્યુ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. રાષ્ટ્રીય ડેન્ગ્યુ દિવસ લોકોને ડેન્ગ્યુ અને તેના નિવારણના પગલાં વિશે જાગૃત કરવા માટે આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલયની પહેલ હતી. એડિસ ઇજિપ્તી નામનું તમને ખબર છે મચ્છર એ ડેન્ગ્યુના ફેલાવાનું મુખ્ય કારણ છે, પણ માદા એડિસ ઇજિપ્ત જે કરડે છે અને ડેન્ગ્યુ મનુષ્યમાં ફેલાવે છે. ડેન્ગ્યુ એ મચ્છરજન્ય રોગ છે
જે ડેન્ગ્યુના 4 અલગ અલગ સ્ટીરિયોટાઇપ્સના વાયરસથી થાય છે. ડેન 1, ડેન 2, ડેન 3 અને ડેન 4. ડેન્ગ્યુના લક્ષણોમાં ગંભીર સ્નાયુમાં દુખાવો થાય, ઉબકા આવે છે. જો યોગ્ય રીતે સારવાર ન કરવામાં આવે તો તે મૃત્યુ તરફ દોરી શકે છે. 2026ની વર્લ્ડની નેશનલ ડેન્ગ્યુ ડે, એની જે થીમ છે ડેન્ગ્યુ નિયંત્રણ માટે સમુદાય ભાગીદારી, તપાસો, સાફ કરો, કવર કરો. મને કહો, મેલેરિયા છે એ કયા મચ્છરના કરડવાથી ફેલાયો છે? કમેન્ટમાં લખીને જણાવો. બેંગલુરુમાં ભારતના શહેરોમાં સૌથી વધુ સાયબર ક્રાઇમ રેટ. નેશનલ ક્રાઇમ રેકોર્ડ બ્યુરો છે, 1986માં એની સ્થાપના થઈ. એના ક્રાઇમ ઇન ઇન્ડિયા 2024ના અહેવાલ મુજબ બેંગલુરુ છે એ ભારતના મેટ્રોપોલિટન શહેરોમાં સાયબર ક્રાઇમના સૌથી વધુ કેસ નોંધાવતું શહેર બન્યું છે. વર્ષ 2024માં બેંગલુરુમાં સાયબર ક્રાઇમનો દર પ્રતિ 1 લાખ વસ્તીએ 206.6 હતો. કેસની સંખ્યા બેંગલુરુમાં 2024માં 17,561 સાયબર ક્રાઇમ કેસ નોંધાયા હતા. 2023માં આ સંખ્યા 17,631ની હતી. ગુનાનો પ્રકાર. કુલ કેસોમાંથી 16,842 કેસ છેતરપિંડી ફ્રોડના, જ્યારે 17,310 કેસ કમ્પ્યુટર સંબંધિત ગુનાઓના હતા. સમગ્ર ભારતમાં સાયબર ક્રાઇમના કેસોમાં 17.9% વધારો થયો છે. અને કર્ણાટક રાજ્યમાં 2024માં કુલ 21,993 સાયબર ક્રાઇમ કેસ નોંધાયા હતા, જેને દેશના અગ્રણી રાજ્યમાંનું એક બનાવે છે. બેંગલુરુની વાત કરીએ તો આપણા ભારતનું આઈટી હબ કહેવાય છે, સિલિકોન વેલી કહેવાય છે, દીપડાની રાજધાની કહેવાય છે, સ્ટાર્ટઅપ હબ કહેવાય છે, પછી આપણે યુનિકોર્ન હબ પણ કહેવાય છે. અને હવે તો તમે જુઓ તો સાયબર ક્રાઇમ હબ થઈ ગયું કહેવાય. ભારતની પ્રથમ 3D પ્રિન્ટેડ પોસ્ટ ઓફિસ ત્યાં આવેલી છે. તમને ખબર છે બેંગલુરુ સિટી યુનિવર્સિટી છે ને એનું નામ બદલી કેરળના આગામી મુખ્યમંત્રી તરીકે કોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે? તો જવાબ આવશે વીડી સતીશન. કોની? વીડી સતીશન. તો કેરળ વિધાનસભાની ચૂંટણી જે 2026માં યોજાઈ એમાં યુનાઇટેડ ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ એનો શાનદાર વિજય થયો. ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ છે એને વીડી સતીશનને રાજ્યના આગામી મુખ્યમંત્રી તરીકે જાહેર કર્યા છે. ચૂંટણી પરિણામ. કોંગ્રેસના નેતૃત્વ હેઠળના યુડીએફ ગઠબંધને 140માંથી 102 બેઠકો જીતીને 2/3 બહુમતી મેળવી છે. આ પરિણામ સાથે પિનારાઈ વિજયનનું નેતૃત્વ હેઠળનું લેફ્ટ ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ એના શાસનનો અંત આવ્યો છે. છેલ્લા 50 વર્ષમાં પહેલીવાર એવું બન્યું છે ભારતના કોઈ પણ રાજ્યમાં ડાબેરીઓની સરકાર નથી રહી. મુખ્ય દાવેદારો સતીશનની સાથે સાથે કેસી વેણુગોપાલ, રમેશ ચન્નીથલા એ પણ મુખ્યમંત્રી પદની રેસમાં હતા, પરંતુ પક્ષે સતીશનના નેતૃત્વ પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે. વીડી સતીશનની વાત કરીએ તો તેઓ વ્યવસાયિક કેરળ હાઈકોર્ટના વકીલ છે. 2001થી સતત 6 વખત પારાવુર મત વિસ્તારમાંથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા છે. અગાઉ વિપક્ષના નેતા તરીકે જવાબદારી નિભાવી હતી, પરંતુ તેઓ પ્રથમ વખત મંત્રી કે મુખ્યમંત્રી તરીકે કાર્યકારી ભૂમિકા ભજવશે. કેરળ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026ના પરિણામો. 140 બેઠકો, ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ 63 બેઠકો, સીપીઆઈ કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયા માર્કસિસ્ટ 26, ઇન્ડિયન યુનિયન મુસ્લિમ લીગ 22 આ જોઈન થઈ ગયા, સીપીઆઈ 8, કોંગ્રેસ કેરળ 7, ભાજપ 3, અન્ય 11. બરાબર છે. કેરળની વાત આવી, તમને ખબર છે કે તિરુવનંતપુરમ એનું કેપિટલ છે, હાઈકોર્ટ એની કોચીમાં છે. તમારા માટે પ્રશ્ન એના ગવર્નર હાલમાં કોણ છે? કમેન્ટ બોક્સમાં લખો. રિસન્ટલી આપણે ભણ્યા કે એન રંગાસ્વામી છે તેઓ પુડુચેરીના સીએમ બન્યા છે. તમિલનાડુના સીએમ વિજય બન્યા છે. અને એના સિવાય તમે જોશો તો પશ્ચિમ બંગાળના સીએમ કોણ બન્યા છે? શુભેન્દુ અધિકારી. બરાબર છે, તો એ પણ યાદ રાખજો, પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે. અને હેમંતા બિસ્વા શર્મા આસામના સીએમ. તાજેતરમાં શ્રી રઘુરાયનું 83 વર્ષની વયે નિધન થયું. તેઓ કોણ હતા? તો તેઓ એક ફોટો જર્નાલિસ્ટ હતા જેમનું રિસન્ટલી અવસાન થઈ ગયું છે. 83 વર્ષની એજથી લાંબા સમયથી કેન્સર સામે ઝઝૂમી રહ્યા હતા. કેન્સર માટેનો દિવસ દર વર્ષે ક્યારે મનાવવામાં આવે છે? 4 ફેબ્રુઆરી, વર્લ્ડ કેન્સર ડે. એમણે ભારતની રાજકીય, સામાજિક, સાંસ્કૃતિક સફરને પોતાના લેન્સ દ્વારા જીવંત રાખી છે. શરૂઆત એમણે 1965માં 23 વર્ષની ઉંમરે ફોટોગ્રાફીની શરૂઆત કરી હતી અને ધ સ્ટેટમેન્ટમાં ચીફ ફોટોગ્રાફર તરીકે જોડાયા હતા. આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ. મહાન ફોટોગ્રાફર હેનરી કાર્ટિયર બ્રેસન દ્વારા એમની કામની પ્રશંસા કરવામાં આવી હતી, જેના કારણે તેમને વિશ્વના પ્રતિષ્ઠિત મેગ્નમ ફોટો સમૂહમાં સામેલ થયા હતા. મહત્વપૂર્ણ કાર્યો. એમણે 1971નું ભારત પાકિસ્તાનનું યુદ્ધ, બાંગ્લાદેશી શરણાર્થીઓની સ્થિતિનું નિપુણતાથી દસ્તાવેજીકરણ કર્યું હતું. સન્માનની વાત કરીએ. 1972માં પદ્મશ્રી, 1992માં અમેરિકા દ્વારા ફોટોગ્રાફર ઓફ ધ યર, 2009માં ફ્રાન્સનું પ્રતિષ્ઠિત નાગરિક સન્માન. તેમનું કાર્ય ટાઈમ મેગેઝિન, ધ ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સ અને નેશનલ જિયોગ્રાફિક જેવા વિશ્વના અગ્રણી પ્રકાશકોમાં ચમક્યું હતું. રઘુરાય માત્ર ફોટોગ્રાફર નહોતા, પરંતુ એક વાર્તાકાર હતા જેમણે ભારતને તેના અસલી સ્વરૂપમાં દુનિયા સમક્ષ રજૂ કર્યું હતું. ઓકે. રાહુલ દ્રવિડ
ઈટીપીએલમાં ડબલિન ફ્રેન્ચાઇઝીના માલિક બન્યા છે. તો ભારતના દિગ્ગજ ક્રિકેટર રાહુલ દ્રવિડ યુરોપિયન T20 પ્રીમિયર લીગ એમાં ડબલિન ફ્રેન્ચાઇઝીના માલિક બન્યા. આ વર્ષે શરૂ થનારી ઈટીપીએલ એ યુરોપની પ્રથમ આઈસીસી માન્યતા પ્રાપ્ત મલ્ટી કન્ટ્રી ફ્રેન્ચાઇઝી T20 સ્પર્ધા છે. ટીમનું નામ, રાહુલ દ્રવિડની ટીમનું નામ શું છે? ડબલિન ગાર્ડિયન્સ. અને આ ટુર્નામેન્ટની 6 ઉદ્ઘાટન ફ્રેન્ચાઇઝીઓમાંની એક છેલ્લે ઉદ્ઘાટન એટલે પ્રથમવાર શરૂ થયેલ છે. સહભાગી દેશો જો આ લીગમાં આયર્લેન્ડ છે, સ્કોટલેન્ડ છે, નેધરલેન્ડ. આ ક્રિકેટ બોર્ડો સાથે ભાગીદારી શરૂ કરવામાં આવી છે. ટીમ લાઇનઅપ લીગમાં ડબલિન, બેલફાસ્ટ, એડિનબર્ગ, ગ્લાસગો, એમ્સ્ટરડેમ, રોટરડેમ એની ટીમો સામેલ હશે. મહત્વ 2024ના વર્લ્ડ કપ વિજેતા કોચ ભારતીય ક્રિકેટના દિગ્ગજ રાહુલ દ્રવિડના જોડાવાથી આ લીગને વ્યૂહાત્મક રીતે મોટો ફાયદો થશે. યુરોપમાં ક્રિકેટના વિકાસને વેગ મળશે. ઓકે. આઈસીસી દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ 1909માં સ્થાપના. હેડક્વાર્ટર ક્યાં તમારે કહેવાનું છે. એના ચેરમેન છે જય શાહ, જે આપણા ભારતના જે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી છે એમના પુત્ર છે. ઇમરાન ખ્વાજા એના કહી શકે વાઇસ ચેરમેન છે. સંજોગ ગુપ્તા એના CEO છે. તો ગાંધીનગરમાં આયોજન કરવામાં આવ્યું છે 10 થી 17 મે દરમિયાન. આવતીકાલે પૂરું થઈ જશે. તો આ વર્ષે ગાંધીનગર ગુજરાતમાં પ્રતિષ્ઠિત 2026ની એશિયન વેઇટલિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન કરી રહ્યું છે. ગાંધીનગરમાં 10 મેથી શરૂ થઈ ગઈ છે. 44 વર્ષ પછી છેલ્લે 1982માં નવી દિલ્હીમાં આયોજન થયું હતું. અત્યારે ફરીથી આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ચેમ્પિયનશિપ આ મહિનાની 17 તારીખે પૂરી થશે. 28 દેશોના 180 એથ્લેટ્સ આ ઇવેન્ટમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. ભારતીય ટુકડી ભારત, ચીન, શ્રીલંકા પ્રત્યેક 16 વેઇટલિફ્ટર્સ સાથે સૌથી મોટી ટીમો મેદાનમાં ઉતારશે. મુખ્ય ખેલાડીઓ ભારતનું નેતૃત્વ વિદ્યારાણી દેવી, અજીત નારાયણ જેવા અનુભવી ખેલાડીઓ કરશે. જો કે ઓલિમ્પિક સિલ્વર મેડલિસ્ટ મીરાબાઈ ચાનુ ઈજાને કારણે આમાંથી ખસી ગયા છે. ઇવેન્ટ આગામી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને એશિયન ગેમ્સ માટે ક્વોલિફિકેશન ઇવેન્ટ તરીકે પણ કામ કરશે. કોમનવેલ્થ ગેમ્સની વાત કરીએ, તમને ખબર છે 2030ની કોમનવેલ્થ ગેમ્સ આપણા અમદાવાદમાં યોજાશે. પણ પ્રશ્ન તમારા માટે એવો છે કે 2026ની આ વર્ષે ક્યાં યોજાવાની છે? કમેન્ટમાં લખો. સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો લિવ ઇન રિલેશનશિપ અને કાયદાકીય સ્થિતિ. સુપ્રીમ કોર્ટે અવલોકન કર્યું કે જો લિવ ઇન રિલેશનશિપ સહમતિથી હોય તો તેમાંથી બહાર નીકળવું એ કોઈ ફોજદારી ગુનો નથી. 15 વર્ષ સુધી સાથે રહેલી એક મહિલાની અરજી પર સુનાવણી કરતા કોર્ટે જણાવ્યું કે માત્ર ભાવનાત્મક મુશ્કેલીને કારણે સહમતિભર્યા સંબંધને ગુનામાં બદલી શકાય નહીં. અદાલતે સ્પષ્ટ કર્યું, એકવાર વ્યક્તિ સહમતિથી બનેલા સંબંધમાંથી બહાર નીકળી જાય તો તેને જાતીય શોષણ કે હુમલો ગણી શકાય નહીં. જો કે કોર્ટે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે આ સંબંધથી જન્મેલા બાળક માટે મહિલા ભરણપોષણની માંગ કરી શકે છે. સુપ્રીમ કોર્ટની વાત છે. સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? લખો કમેન્ટ બોક્સમાં. હરિલાલ કણિયા પ્રથમ CJI, હાલમાં 53મા નંબરના જસ્ટિસ સૂર્યકાંત. અગાઉની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા વિજ્ઞાનના પ્રશ્નો. પહેલો પ્રશ્ન, લાફિંગ ગેસ તરીકે ઓળખાય છે કોણ? નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ. ચંદ્ર પર સૌ પ્રથમ પગ મૂકનાર? નીલ આર્મસ્ટ્રોંગ. નીચેનામાંથી કયા પ્રાથમિક રંગો છે? તો RGB, લાલ, લીલો અને RGB. કયો રોગકારક વિષાણુને કારણે કમળો થાય છે? હેપેટાઇટિસ. મનુષ્યમાં ખોરાકના પાચનની પ્રક્રિયાની શરૂઆત ક્યાંથી થાય? મોઢામાંથી થાય. લાળરસ જમા થાય ને, એડ થાય ને. હવે જોઈશું અગાઉની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા ગુજરાતની કળા સંસ્કૃતિ વારસાના પ્રશ્નો. પહેલો પ્રશ્ન, આમાંથી આ નૃત્ય સાથે કોણ સંકળાયેલું ના ગણાય? આમાંથી તો જયશંકર સુંદરી છે ને, તો અભિનેતા હતા, નાટ્યકાર હતા. જયશંકર ભોજક એમનું નામ. સુંદરીનો રોલ કર્યો હતો એમણે, બરાબર છે. દિવાળીબેન ભીલનું નામ કયા ક્ષેત્ર સાથે? લોકસંગીત. એલિસ બ્રિજનું નામ કોના પરથી રાખવામાં આવ્યું? અંગ્રેજ અધિકારીના પત્ની. ચિત્રકાર અમિત અંબાલાલ કઈ ચિત્રકળા સાથે જોડાયેલા છે? પીછવાઈ. જય ગરવી ગુજરાતના રચયિતા કવિ નર્મદ. હવે ગઈકાલે પૂછેલા પ્રશ્નો જવાબ જોઈએ. પહેલો પ્રશ્ન, ગુજરાતની કઈ યુનિવર્સિટીએ સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસક્રમમાં મોદી તત્વ મોડ્યુલ સામેલ કર્યું? તો MS યુનિવર્સિટી. પ્રથમ ઇન્ટરનેશનલ બિગ કેટ એલાયન્સ સમિટ 2026 કયા શહેરમાં યોજાશે? तो नई दिल्ली में. प्रश्न ये आपके सामने, हमारे जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जिनके पास कृषि मंत्रालय है, और अभी इन्होंने ही अपनी एक नई बुक लॉन्च करने की घोषणा की है. इस बुक का नाम क्या है ये आपसे पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा अपनापन. इस बुक का नाम होगा अपनापन. ठीक है, तो शिवराज सिंह चौहान ने अपनी एक नई किताब अपनापन को लॉन्च करने की घोषणा की है. और ये बुक जो है ये किस पर आधारित होगी? ये उनके यानी कि शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच पिछले 35 सालों के अनुभवों और उनके बीच जो रिश्ता रहा है उस पर यह आधारित होगी बुक. उन्होंने कहा ये केवल एक राजनीतिक किताब नहीं है, बल्कि मोदी जी के साथ काम करने के दौरान जो शिवराज सिंह चौहान जी के जो निजी अनुभव रहे हैं तो उसकी ये कहानी बयां करती है. इस बुक को ये लॉन्च करेंगे 26 मई को नई दिल्ली में.
तो बुक का नाम याद रखना सीधा सा, अपनापन इस पुस्तक का नाम है। बुक वाला प्रश्न है तो चलो बुक से ही मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। एक बुक हमने पढ़ी थी, द रिमार्केबल लाइफ ऑफ द ओनली मुस्लिम वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये ऑटोबायोग्राफी है बेगम कुदसिया रसूल की। और ये बेगम रसूल आप जानते हो, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। भारत दैट इज इंडिया अभिजीत जोग ने लिखा। द 11th आवर क्विंटेंट ऑफ स्टोरीज को सलमान रुश्दी ने, कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर को रंजन महाजन ने, व्हेन इट ऑल बिगिन राकेश मारिया, सनातन संस्कृति के अटल दृष्टि अटल जी के ऊपर है, इसको लिखा वासुदेव देवनानी ने जो कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। द ग्रेट सैंक्शन हैक उर्जित पटेल ने लिखा है जो कि आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, वर्तमान में तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण को लिखा सिकंदर कुमार ने। माय आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट को लिखा उदय माहुरकर ने। और महामना वांग में ये पंडित मदन मोहन मालवीय के लेखन और भाषणों का संग्रह है, दूसरा एडिशन है। अब इसको लॉन्च किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने। इन सर्विस ऑफ द नेशन रिफ्लेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेट को लिखा प्रताप सिंह ने। अनलाइकली पैराडाइज को संजय राउत ने लिखा, ये शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद हैं। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड को मनोज मुकुंद नरवणे जी ने, पूर्व सेना प्रमुख जो हैं। और आप मुझे बताना इनकी एक बड़ी फेमस बुक है उसका नाम क्या है। और वाई द कॉन्स्टिट्यूएंट मैटर को लिखा था डीवाई चंद्रचूड़ ने, हमारे फॉर्मर पूर्व सीजेआई। और अभी लेटेस्ट हमने पढ़ी थी, ये दो बुकें हैं, द बेंच द बार द बिजारे एंड द लॉफुल एंड द ऑफुल। इन दोनों को लिखा हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। ठीक है, ये सारी पुस्तकें अभी न्यूज में, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड ये कहां पर विकसित किया जाएगा? तो आंसर होगा थुथुकुडी में। तो भारत और दक्षिण कोरिया ये मिलकर के तमिलनाडु के थुथुकुडी में एक बहुत बड़ा और आधुनिक जहाज बनाने का कारखाना यानी कि शिपयार्ड बनाएंगे। ये भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड होगा। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है नई जगह पर शुरू से बनाया जाने वाला एक प्रोजेक्ट, जिसे जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट में, इस परियोजना में साउथ कोरिया की दो बड़ी कंपनियां हैं, एचडी कोरिया शिप बिल्डिंग और ऑफशोर इंजीनियरिंग। ये इसमें भारत की मदद करेंगी इसे बनाने में। और ये शिपयार्ड हर साल लगभग 25 लाख ग्रॉस टनेज क्षमता के जहाज बना सकेगा। 25 लाख ग्रॉस टनेज का मतलब हो गया जो भी ये शिप बनाएंगे उसके अंदर इतनी जगह होगी। ये जहाज का वजन नहीं बता रहा है, उसके अंदर इतना टन आप सामान रख सकते हो, ये उसकी कैपेसिटी बता रहा है। मतलब इतने बड़े बड़े जहाज यहाँ पे बनाए जा सकेंगे जिसमें इतनी क्षमता होगी। और वैसे भारत का लक्ष्य है 2047 तक दुनिया के टॉप 5 जहाज निर्माण देशों में शामिल होना। और अभी भारत और साउथ कोरिया के बीच में ये जो कारखाना, ये जो शिपयार्ड बनाने के लिए जो समझौता हुआ है ना, ये वॉयजेज नामक भारत और दक्षिण कोरिया समुद्री साझेदारी के तहत हुआ है, जिसका उद्देश्य है जहाज निर्माण तकनीक और बंदरगाह विकास में सहयोग बढ़ाना। एक बार मैं आपको वॉयजेज के बारे में बता दूं, इसकी फुल फॉर्म होती है विजन फॉर ऑपरेशन ऑफ यार्ड असिस्टेड ग्रोथ विद एफिशिएंसी एंड स्केल। मतलब भारत और साउथ कोरिया के बीच एक व्यापक समुद्री सहयोग ढांचा है ये, और इसे अभी अप्रैल 2026 में ही लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य है भारत के जहाज निर्माण, शिपिंग, समुद्री रसद यानी कि मैरीटाइम लॉजिस्टिक क्षेत्र को आधुनिक बनाना और दक्षिण कोरिया की उन्नत तकनीक का उपयोग करके भारत को एक वैश्विक समुद्री शक्ति बनाना। तो इसी के तहत भारत और दक्षिण कोरिया साउथ कोरिया मिलकर के भारत में ये भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड बनाएंगे। कहां बनाएंगे याद रखना, तमिलनाडु के थुथुकुडी में। कुछ और प्रश्न मैं आपको इसी तरह से रिवाइज कराऊं तो याद रखना, भारत का पहला स्वायत्त शिपयार्ड ऑटोनोमस मैरीटाइम शिपयार्ड ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में बनाया जाएगा। हमारे जो शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने वाराणसी से भारत का पहला इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल को लॉन्च किया था। और आपको याद होगा केंद्र सरकार ने देश भर के लगभग 250 भारतीय बंदरगाहों के लिए सीआईएसएफ को नया सुरक्षा नियामक सिक्योरिटी रेगुलेटर नियुक्त किया था। अब ये वहां पे सिक्योरिटी देंगे, मतलब उसकी सुरक्षा संभालेंगे। जहाज और बंदरगाह सुविधाओं की सुरक्षा को विनियमित रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार किस निकाय की स्थापना कर रहा है? तो आंसर होगा ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। भारतीय नौसेना का पहला पूरी तरह से स्वदेशी मेड इन इंडिया कैडेट प्रशिक्षण जहाज का नाम क्या है? कृष्णा है। इसको बनाया लार्सन एंड टुब्रो ने। वाटर जेट प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी के साथ भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है। और ये फैसिलिटी कहां पर स्थापित की गई है? गोवा में।
अभी सरकार ने गुजरात के वडीनार में एक बड़ा और आधुनिक जहाज मरम्मत केंद्र भी बनाने की मंजूरी दे दी है। उसके अलावा अभी इंडियन ओशन शिप सागर पहल भारत की एक जो मैरीटाइम पहल है, अभी इसका दूसरा संस्करण लॉन्च हुआ था कहां पर, कोच्चि। ठीक है, तो इसी से मिलते जुलते कुछ प्रश्न थे, ये हमने रिवाइज करे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए अभी अदरक मिशन ये कहां पर शुरू किया सरकार ने? तो आंसर होगा मिजोरम। तो अभी केंद्र सरकार ने मिजोरम में अदरक की खेती को बढ़ावा देने के लिए अभी जिंजर मिशन या अदरक मिशन को शुरू किया है। इसका मकसद है वहां के खास अदरक को देश विदेश में पहचान दिलाना और किसानों की कमाई बढ़ाना। सरकार इस योजना पर लगभग 190 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इससे करीब 20,000 किसान परिवारों को फायदा मिलेगा। तो मिजोरम का अदरक बहुत ही अच्छा गुणवत्ता का माना जाता है, इसलिए इसे दुनिया के बाजारों में बेचने की तैयारी कर रही है सरकार। क्या होगा इस मिशन में? तो अदरक की बेहतर और टिकाऊ खेती किसानों को सिखाई जाएगी और खेती में मशीनों और सोलर पावर का उपयोग बढ़ाया जाएगा। अदरक को खराब होने से बचाने और उसकी प्रोसेसिंग, जैसे उसका पाउडर बनाना है, तेल बनाना है, पेस्ट बनाना है, तो उसके लिए भी केंद्र बनाए जाएंगे। अब बात मिजोरम की है, तो ये रहा मैप में मिजोरम। कैपिटल आइजॉल हो गई है, मुख्यमंत्री लालदुहोमा, गवर्नर है वीके सिंह। चापचार कुट महोत्सव यहाँ मनाया जाता है, एंथुरेम महोत्सव मनाया जाता है। पिछले साल जो नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल हुआ था मिजोरम में हुआ था। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देखें यहां से। तो उल्लास प्रोग्राम के तहत देश का पहला साक्षर राज्य ये मिजोरम बना था, दूसरा गोवा और तीसरा त्रिपुरा बना था। राज्यों में बात कर रहे हैं, यूटी में बात करोगे तो पहला है लद्दाख, दूसरा है चंडीगढ़। राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली चौथी पूर्वोत्तर राजधानी बन गई है मिजोरम के कैपिटल आइजोल। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा भी मिजोरम के लुंगफुन रोपुई स्थल को राष्ट्र महत्व के स्मारक के रूप में मान्यता दी गई। मिजोरम अभी हाल ही में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बन गया है, जबकि पहला भिखारी मुक्त शहर पूछेंगे तो इंदौर है। ठीक है, उसके अलावा ये देखो, नीति आयोग ने मिजोरम को भारत का जिंजर कैपिटल घोषित किया था। यानी कि अगर पूछे कि भारत की अदरक राजधानी ये कौन सी बनी है, तो मिजोरम। और ड्रग्स के विरुद्ध ऑपरेशन जेरी को भारत के मिजोरम में चलाया गया था। चापचार कुट महोत्सव मनाया जाता है यहाँ पे मिजो जनजाति के द्वारा। आपदा के समय तुरंत प्रक्रिया देने के लिए अभी खुआरल ऐप को भी लॉन्च किया था मिजोरम में ही। ठीक है, तो ये सारी बातें मिजोरम से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में डबलिन फ्रेंचाइजी के मालिक कौन बने हैं? तो आंसर होगा राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ अब यूरोप की एक नई क्रिकेट लीग है, यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग। इसमें एक टीम है डबलिन गार्डियंस टीम, उसके मालिक बन गए हैं। और इसी टीम के कप्तान बने हैं कौन? आर अश्विन। तो ETPL क्या है? यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग। ये यूरोप की एक नई T20 क्रिकेट लीग है, बिल्कुल जैसे IPL होता है भारत में उसी तरह से। और इसका उद्देश्य है यूरोप में क्रिकेट को ज्यादा लोकप्रिय बनाना। और हमारे जो अभिनेता है अभिषेक बच्चन, वो इस क्रिकेट लीग जो है यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग, इसके सह मालिक को ओनर है। आपको याद होगा अभिषेक बच्चन हमारे प्रो कबड्डी लीग होता है, उसमें एक टीम है जयपुर पिंक पैंथर, उसके भी मालिक हैं कौन? अभिषेक बच्चन ही। ठीक है, तो सिंपल से याद रखना है कौन सी लीग है, यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग। और उसमें कौन सी टीम है? डबलिन गार्डियंस टीम। उसके मालिक तो राहुल द्रविड़ और कप्तान आर अश्विन। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बताना अभी कर्नल CK नायडू अवार्ड ये राहुल द्रविड़ को दिया गया था, इनके अलावा एक और जने को दिया गया था, उनका नाम क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जो हमारे विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी, इन्होंने शून्य से अनंत नाम से एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। कहां पर किया? तो आंसर होगा न्यूयॉर्क में। तो आप जानते हो हमारे जो विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर जी, इन्होंने न्यूयॉर्क में, जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, वहीं पर शून्य से अनंत तक नाम की एक प्रदर्शनी शुरू की, इसका उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का मकसद क्या है? दुनिया को यह दिखाना कि भैया गणित के क्षेत्र में भारत का योगदान कितना बड़ा है। इस पे तो हम आपको पता है गाना भी बना चुके हैं, जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने। तो यह गणित के क्षेत्र में भारत का योगदान बहुत बड़ा है। इस प्रदर्शनी की ही बात करें तो भारत की लगभग 2000 साल पुरानी गणितीय परंपरा यहाँ पर दिखाई गई। इसमें बताया गया कि भारत ने गणित को सोचने, सीखने और उपयोग करने के तरीकों को कैसे विकसित किया। दुनिया को यह भी दिखाया कि शून्य, जीरो जैसी महत्वपूर्ण खोज ये भारत से जुड़ी है। ठीक है, तो इस प्रदर्शनी का नाम क्या है? शून्य से अनंत तक, जिसका उद्घाटन इन्होंने कहां पर किया? संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय न्यूयॉर्क में। वैसे आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? पर्वत नेनी हरीश है। ठीक है, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं,
अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, हर साल 15 मई को मनाया जाता है। ये दिन मनाने का उद्देश्य है परिवार के महत्व को समझाना और समाज में उसकी भूमिका को सम्मान देना। थीम क्या है? फैमिलीज, इनइक्वलिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग। और आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने 1993 में 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में घोषित किया था और पहली बार इसको 1994 में मनाया गया था। तब से मनाते आ रहे हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। चलो एक बार फिर से मई के सारे दिवस एक बार रिवाइज करेंगे हम। 1 मई को श्रमिक दिवस, लेबर डे था। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कोयला खनिक दिवस। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे और 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस। 8 मई को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, तो ये मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ, साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का नया अध्यक्ष अभी किसे चुना गया? तो आंसर होगा सहदेव यादव को। तो सहदेव यादव का नाम याद रखना, क्योंकि अब ये दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। और सहदेव यादव ये पहले से भारतीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के पहले से ये प्रमुख हैं और अब उन्हें पूरे दक्षिण एशिया के वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष बना दिया गया है। वैसे साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का सीईओ कौन बनी है? तो ये सबीना यादव बनी है और अध्यक्ष बने हैं सहदेव यादव। अब नियुक्तियों की बात हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां आपको चलो रिवाइज करवाते हैं। इंडियन एयरफोर्स के अभी वाइस चीफ बने थे नागेश कपूर। भारतीय महिला हॉकी टीम के नए कोच सोजर्ड मारीजने नीदरलैंड से हैं। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी रविंद्र कुमार अग्रवाल। चमड़ा निर्यात परिषद के अध्यक्ष बने रमेश कुमार जुनेजा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के नए अध्यक्ष ए.के. बालासुब्रमण्यम। और नितिन नबीन, ये पटना बिहार से हैं, बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और वैसे 12वें नंबर के बने। नीति आयोग के नए सीईओ, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इनको, एडिशनल चार्ज, नाम है नीति छिब्बर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रसन्ना कुमार और इंडियन आर्मी के वाइस चीफ धीरज सेठ। और इस बार 18वां ब्रिक्स समिट को होस्ट भारत ही कर रहा है और इसमें भारत के शेरवा बनाए गए सुधाकर दलेला। देश की पहली खुले तौर पर क्वीर राज्यसभा सांसद बनी है मेनका गुरुस्वामी, पश्चिम बंगाल से। मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नेमचा किपगेन बने। आत्मा के नए अध्यक्ष अरुण मामेन बने। आत्मा मतलब ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री अभी युमनाम खेमचंद सिंह बने थे। ठीक है, आज मैंने अपॉइंटमेंट्स वाली शीट बिल्कुल नई कराई है रिवाइज और ये 2026 वाले ही प्रश्न है ना, तो सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, काल भैरव का निर्माण यूरोप के किस देश में किया जाएगा? तो सही उत्तर होगा पुर्तगाल। क्या है काल भैरव, ये भी तो बात कर ले। तो भारत का एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला एक लड़ाकू ड्रोन है, एक विमान है जिसका नाम काल भैरव है और अब यूरोप के किस देश में इसको बनाया जाएगा? पुर्तगाल में। इसे जो भारतीय कंपनी है, एक फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस, बेंगलुरु की एक आप कह सकते हो एक स्टार्टअप है जो इसको बना रहा है और ये पहली बार है जब किसी भारतीय डिजाइन वाले यानी कि ऑटोनोमस लड़ाकू विमान का जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो विदेश में होगा। तो काल भैरव जिसका नाम है, ये क्या है? एक लाइन में कहोगे ये एक आधुनिक बिना पायलट वाला एक लड़ाकू विमान है, मतलब एक तरह का ड्रोन है जो और एआई से ऑपरेटेड है, मतलब ये खुद से फैसले लेने में सक्षम है। इसे युद्ध और निगरानी जैसे कामों के लिए बनाया जाएगा। कुछ इसकी ही इंपॉर्टेंट बातों की हम चर्चा कर लें तो ये लगभग 3000 किलोमीटर तक उड़ सकता है, लगातार 30 घंटे से ज्यादा हवा में रह सकता है, एआई की मदद से दुश्मन के लक्ष्य को पहचान सकता है और कई ड्रोन मिलकर के झुंड की तरह काम कर सकते हैं। स्वार्म ड्रोन जिसे हम कहते हैं, झुंड में ड्रोन जब हमला करते हैं। और इसको पुर्तगाल में क्यों बनाया जा रहा है? तो ये जो भारत की कंपनी इसको बना रही है, हमने कहा फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस, इसने इसका निर्माण करने के लिए भी पुर्तगाल की एक कंपनी है स्केच पिक्सल एलडीए, उसके साथ समझौता किया। वो पुर्तगाल की कंपनी है तो उसने कहा कि भैया यही बनाओ, तो इसलिए हम वहां पर बना रहे हैं। अच्छा, काल भैरव से आपको कुछ याद आ रहा होगा यार, भैरव जैसा हमने कुछ सुना था। एक्चुअली में हमारी सेना ने भैरव नाम से एक नई स्पेशल फोर्स का गठन किया था और ये जो फोर्स है खास तौर पर ड्रोन चलाने में माहिर है। ठीक है, इसकी स्पेशलिटी यही है, ड्रोन चलाने में ये माहिर है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत ने किस पहल को लॉन्च किया जिसका उद्देश्य है भारतीय जहाज और कार्गो वेसल को युद्ध जोखिम बीमा सुरक्षा देना? तो सही उत्तर होगा भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल।
तो भारत सरकार ने मालवाहक जहाजों के लिए सस्ती और सुरक्षित इंश्योरेंस सुविधा को शुरू किया, जिसे भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल कहा गया है। तो यह है क्या? आप कहोगे ये एक ऐसा भारतीय बीमा सिस्टम है जो जहाजों और समुद्री व्यापार को खतरे के समय में भी बीमा सुरक्षा देगा, खासकर युद्ध जैसा कोई माहौल हो रहा हो, हमला हुआ हो, अंतरराष्ट्रीय तनाव जैसी स्थिति हो, तो किसी भी स्थिति में जहाजों को बड़ा नुकसान हो सकता है, इसीलिए ये व्यवस्था बनाई गई है। अच्छा, इसे शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी सरकार को? क्योंकि आज तक भारत को समुद्री बीमा के लिए काफी हद तक विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर पश्चिमी एशिया जैसे क्षेत्रों में तनाव बढ़ते हैं तो विदेशी कंपनियां बीमा महंगा कर देती हैं या फिर उसको बंद भी कर सकती। हम पूरी तरह से उन्हीं पे डिपेंड हैं। तो अभी सरकार ने इसको लॉन्च किया, इसको शुरू किया, इस सुविधा को, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल इसका नाम याद रखना। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, भारतीय जहाजों को लगातार बीमा मिलता रहे, विदेशी कंपनियों पर हमारी निर्भरता कम हो, समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखा जाए। क्योंकि जैसे अभी हार्मुज स्ट्रेट की अगर बात कर लें, जहाँ पे तनाव चल रहा है, तो बड़े बड़े जहाज निकलते उनमें करोड़ों का माल होता है। अगर ऑयल की बात करें, करोड़ों में, मतलब एक ही जहाज करोड़ों का ऑयल लेके निकल रहा है। और जब युद्ध जैसे हालात है, जैसे अभी हार्मुज स्ट्रेट में हो रहे हैं, ईरान उड़ाने की धमकी देता है या बम वगैरह गिराता है, कुछ भी हादसा अगर कैसे भी करके उसके साथ हो जाता है, जाने अनजाने में कैसे भी, तो वो तो गया ना, तेल तो बह गया ना, माल तो गया। तो इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। अच्छा, इस इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होगा? जहाज को अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो वो इंश्योरेंस में आएगा। उसमें जो सामान है, जो भी कार्गो है, उसको कोई नुकसान होगा तो वो इंश्योरेंस में आएगा। उसके अलावा दुर्घटना या कानूनी जिम्मेदारी, युद्ध जोखिम वगैरह सब इसको कवर करेगा। अच्छा, इसको कौन चलाएगा? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और सरकार ने कितनी गारंटी दी है? सरकार ने लगभग 1.5 अरब डॉलर की गारंटी दी है, ताकि जरूरत पड़ने पर नुकसान की भरपाई हो। ठीक है, तो ध्यान रखना ये डेटा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी मई 2026 में केंद्र सरकार ने सरफेस कोल या लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए भी कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा 37,500 करोड़ रुपए। तो सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिससे कोयले को सिर्फ जलाने के बजाय उससे गैस और कई जरूरी रसायन बनाए जाएंगे। इसे कोयला गैसीकरण, कोल गैसिफिकेशन कहते हैं। तो क्या है कोल गैसिफिकेशन? इस प्रक्रिया में कोयले को विशेष तकनीक से बदलकर सिन गैस यानी कि सिंथेटिक गैस में बदला जाता है। कोयले को हम बदल देते हैं सिन गैसेज में। इस गैस को आगे चल करके हम कई चीजें बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एलएनजी आप बना लो, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यूरिया बना लो, अमोनिया बना लो, मिथेनॉल बना लो, ईंधन और रसायन आप बना लो, केमिकल। यानी कोयला केवल बिजली बनाने की काम नहीं आ रहा, बल्कि गैस और केमिकल बनाने की में भी उपयोग किया जा रहा है। और अभी सरकार ने क्या मंजूरी दी है? तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य है 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण हमें करना है। तो नई योजना के तहत लगभग 75 मिलियन टन कोयला या लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं में इस्तेमाल होगा। अच्छा, सरकार अभी ये योजना क्यों लेकर के आ रही है? तो भारत अभी कई चीजों के लिए विदेशों पर हम निर्भर है, जैसे कि एलएनजी का 50% से ज्यादा हम आयात करते, इंपोर्ट करते हैं। यूरिया का लगभग 20% इंपोर्ट किया जाता है। अमोनिया लगभग पूरा ही हम इंपोर्ट ही करते हैं। मिथेनॉल 80-90% हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर इस प्रोसेस को हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब कोयले से ये सारी चीजें हम बना लेंगे, तो आयात यानी कि इंपोर्ट कम होगा, विदेशी खर्च बचेगा, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, फायदा ही फायदा है। ठीक है, तो कितनी प्रोत्साहन योजना, इस योजना के लिए कितनी राशि सरकार ने रखी है याद रखना, 37,500 करोड़ रुपए। और ये लक्ष्य भी याद रखना, 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करने का, यानी कि गैसिफिकेशन करने का हमारा लक्ष्य है। ठीक है, डेटा वाला प्रश्न है, थोड़ा सा समझने वाला भी है। समझा तो मैं आपको आराम से रहा हूं, पूरा समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे सपोर्ट जरूर करना। अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। और सेशन कोर्ट ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया? तो आंसर होगा अरविंद कुमार। फिर पूछा कि मुफ्त फूड किट बांटने के लिए भी मेरी रसोई योजना शुरू की है। तो आंसर होगा पंजाब सरकार ने। फिर पूछा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर होगा आर मुकुंदन। और किसने सरकारी स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कर्तव्य कामस एप्लीकेशन को लॉन्च किया?
तो आंसर होगा कर्नाटक ने। फिर पूछा कि ला लीगा 2026 का खिताब जीत लिया अभी किसने, तो आंसर होगा बार्सिलोना ने, रियल मैड्रिड को हरा करके। फिर पूछा यूएस फेडरल रिजर्व का अगला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा केविन वॉर्शन का नाम है। और फिर पूछा था यावेरी मुसेवेनी अभी 7वीं बार किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं, तो आंसर होगा युगांडा। और आखिरी प्रश्न पूछा था अभी अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ, ये हमने कब मनाया, तो आंसर होगा 12 मई। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था यूनाइटेड नेशन महासचिव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो सही उत्तर होगा स्वामी शांता कुमार। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।